ते टेस्ट नहीं आते।
Prem sir? Yes, Aziz sir, good morning. Yes, sir. Good afternoon, sir. We should Yeah, start good the afternoon. session. It's already 1:08. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, everyone, good afternoon. Ashish sir, is I audible? Yes, sir. Perfect. Okay, thank you, sir. Yes, everyone. First of all, I'd like to welcome to you all to Shri D.B. Bhatia Junior College of Science. Okay. Thank you for choosing this college. Today, I'm going to start with one of the bifocal subject, that is mechanical maintenance. Before that, I would like to introduce myself. My name is Prem Shankar Tripathi, and I'm teaching mechanical maintenance in D.B. Bhatia College since last 7 years. So today I'm going to give you a brief description about this subject. Okay, I will explain the things in this particular bifocal subject, mechanical maintenance. And whatever you're having a doubt, we will continue in the end of these sessions. You can just type in the chat box also, no issues in that. If not, you can directly ask in the when I will complete this session. In this particular session, so just will show you the topics of the lab, what the subject is all about, how is it beneficial to all the students, and especially for those who have taken NATA, okay, those who are preparing for the NATA architecture exams, and those who are planning for a future after 12, they are going for engineering, and how it is useful to the other engineering subject that I'm going to explain. Okay, just I'll share one PPT with you all first of all. Just one sec.
सर आप शायद म्यूट हो गए थे गलती से, आपको ना अगर ना आपको सर, बोला एक्चुअली होगा तो आपको फिर जब से मैं बोलना पड़ेगा। ना 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 मैं हाँ जस्ट ये कंफर्म कर रहा था कि जब मैं पीपीटी प्ले कर रहा हूँ सर, मेरी साउंड आ रही है? जस्ट 1 हाँ सेकंड, हाँ ठीक 1 है, मिनट जस्ट स्टार्ट कंफर्म कीजिए, कर मैं लूँ। बताता हूँ। 1 मिनट, हाँ सर। हाँ अभी आ रही है सर? हाँ आपकी आवाज़ आ रही है, क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू सर। Okay, students, so just I want to share the bifocal subject mechanical maintenance with you all. So just I will start with the subject. The bifocal subject which we are offering in our college is mechanical maintenance, computer science, electronics, and सर electrical सर सर maintenance. एक मिनट, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। Yeah. आपने शायद एक ही स्क्रीन को शेयर किया है, जो आपका जूम है उसको। तो आपका पीपीटी नहीं दिखाई दे रहा। आप स्क्रीन शेयर पे क्लिक कीजिए और हाँ वहाँ हाँ, पर आप, एक मिनट सर। फिर आपका स्लाइड दिखाई देगा, क्योंकि आपने शायद वो जूम सॉफ्टवेयर को खाली बस शेयर किया गलती से। Just 1 sec. सुमित ठाकुर, तुम्हें कुछ पूछना था, तब तक पूछ लो जब तक सर सेटिंग कर रहे हैं। सुमित, सुमित प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। जान, कुछ पूछना नहीं है सुमित? जानवी, तुम्हें कुछ पूछना है? ठीक। Ashish sir. हाँ बोलिए सर। Sir, I am just logging from another device, sir. श्योर श्योर, नो इश्यू। तब तक Okay, just to केतन पाटिल सर प्लीज आप कंटिन्यू हाँ, कीजिए। just I'm logging from other device. हम्म। Just 1 second. Okay, students, till the time sir is making necessary arrangements, if you have any question, please raise your hand. And Ketan sir is there, I am there. We will help you to answer the questions. जानवी, तुमने हाथ रेज किया है। सुमित, तुमको मैंने बोला कि अनम्यूट करके पूछो, तुम पूछ नहीं रहे हो। सर अगर 11th में टीपी भाटिया में एडमिशन मतलब नहीं लिया और 12th में लिए, तो मतलब जनरल साइंस लिए और बायो की जगह मतलब क्या कहते हैं साइकोलॉजी लिए, तो कितना फीस लगेगा अगले साल? क्या नहीं, जरा फिर से बोलो। मतलब कि अभी मुझे इतना समझा कि तुमने 11th में एडमिशन नहीं लिया है। 11th में एडमिशन मतलब ले लिया, 12th में लेंगे जनरल साइंस, मतलब कोई बायो फोकल नहीं लेंगे, सिर्फ जनरल साइंस लेंगे अनएडेड में, तो कितना फीस लगेगा? लगभग 23,000 रुपया फीस रहेगा। ओके सर। और कंप्यूटर साइंस बायोफोकल में बेस्ट रहता है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे बाइफोकल बेस्ट रहते हैं। चॉइस आपका रहता है कि आपको कौन सा बाइफोकल कंफर्टेबल है। और ठीक है। ज्यादातर लोग कंप्यूटर साइंस को लेते हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस अभी ज्यादा वो हो रहा है। कंप्यूटर साइंस मार्केट में ट्रेंड होता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस बहुत सारे सब्जेक्ट में अवेलेबल भी होता है और बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस होता है, इसीलिए। आप समझ रहे हो? उसके अलावा भी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, मैकेनिकल मेंटेनेंस और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, वो भी सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। वो सब बाकी कॉलेजेस में नहीं होता, इसीलिए आप उसका नाम नहीं सुनते। समझ रहे हो सुमित? हाँ सर। इसलिए हमने ये ओरिएंटेशन रखा है, ताकि आप और भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जानो, ताकि आप जब जानोगे तो आपको समझेगा कि हर सब्जेक्ट का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि कंप्यूटर साइंस ही अच्छा है या मैकेनिकल मेंटेनेंस ही अच्छा है या कोई भी एक सब्जेक्ट ही अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, यस सर। ओके। डार्क ऑफिशियल चैनल, प्लीज चेंज योर नेम। आई एम गोइंग टू रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग नाउ इटसेल्फ। सर मैंने फॉर्म भरा था पर मेरा टीपी भाटिया में नाम नहीं आया था। तो आप आकर के एडमिशन ले लो। आप मीटिंग में ये सारी बातें क्यों कर रहे हो सुमित भैया? आप आ जाओ, एडमिशन ले लो, कॉलेज में मिलो, कॉलेज ओपन है, 5 बजे तक आ सकते हो आज। ठीक है,
Okay, Sumit. Hello. Good afternoon, students. I am Ketan Patil, sir, lecturer of mechanical maintenance. So generally, mechanical maintenance subject is a branch of engineering, and especially mechanical field is a very vast. Generally, mechanical is an engineering branch that combine engineering principles with the materials science to design different types of machine parts, different types of machines, different types of machine devices, and etc. Generally, it is analysis and manufacturing process, production process. Generally, production of different types of machine part by using the different types of materials, especially to manufacture according to the design, according to the engineering drawing, especially for the operation for mass production work, and maintain the mechanical system. Especially every machine is subjected to the wear and tear, and when it is hence proper attention should be given to protect the machine and its component from unwares. Especially proper attention means it is a systematic maintenance. So generally name of the subject is called the mechanical maintenance. What is by maintenance? Maintenance of machine means effort systematically maintenance. Maintenance of machine especially done regularly basis, especially done monthly basis, weekly basis, and daily basis. So generally, different types of machine from small machine to the big machines are maintained with help of the maintenance engineer and directed towards the upkeep, the repairs of the machine part, different types of machine devices are used, directed towards to upkeep and to repair the machine elements, especially to wear out the parts. If wear out parts are used, then some problem, especially efficiency of machine is reduced. Then to try to the rectify the machine part, or if not possible rectifying, then replace the new one part and again machine run according to the process. Especially mechanical maintenance subject is quite very easy. Mechanical maintenance have quite interesting things, that is the learning of several machines, especially machine operation, especially different types of machine process. For example, lathe machine, milling machine, a drilling machine, shaping machine, grinding machine, planing machine, slotting machine. Similarly, different types of process also used. Different types of labs are also used. Carpentry shop, smithy shop, forging shop, fitting shop, and engineering drawing. The engineering drawing is very useful subject, which is included in mechanical maintenance subject, and especially it is helpful for a first year engineering BE program, bachelor engineering program, for all branches, all engineering branches. It is a compulsory subject which is included in mechanical maintenance, and in engineering drawing, different types of topics are covered, especially orthographic projection means two-dimensional drawing, two-dimensional figure means to draw any one of the machine part, especially to draw the front view, to draw the top view, to draw the left-hand side view, to draw the right-hand side view. Then orthographic projection with help of the different methods, then isometric projection with help of the different methods, sectional orthographic projection, freehand sketches, which is very helpful for engineering subjects also, engineering students also, and architecture study also. Then other subject is included in mechanical maintenance, that is called the workshop practice. The workshop practice of lathe machine, workshop practice of milling machine, workshop practice of shaping machine, workshop practice of grinding machine, specially used for mechanical maintenance, and it is very helpful for first year engineering student because there is one compulsory subject, workshop technology, and especially it is related to the practical and practical based applications also done in engineering first year program, means workshop technology to make the
different types of job, different designs of job on fitting shop by using the different types of fitting tools. Also use different types of marking tools, different types of cutting tools, different types of boring tools, different types of drilling tools also use. Okay, now Prem sir is connected. Just wait. Yes, Prem sir. प्रेम सर आपको को होस्ट बना दिया मैंने, आप स्टार्ट कर सकते हैं जब आप प्रेम सर ready हो। कंटिन्यू कीजिए। सर आप कंटिन्यू कीजिए जब तक प्रेम सर ज्वाइन हो रहे तब तक। हाँ सर, सर प्रेम सर ने रिशिता का नाम से एक दूसरे डिवाइस से कनेक्ट किया हुआ है, तो कौन जरा के उनको नाम से? प्लीज कोच बना दीजिएगा। क्या नाम है जरा फिर से बताइए। रिशिता, ऋषिता त्रिपाठी, हाँ दिख गया। राइट, हाँ हाँ बना दिया पोस्ट। Yeah, Yes, thank you, sir. ओके Yes, sorry, student, there are some technical problems. सर कोई बात नहीं सर, होता है। Yeah. ठीक है, Okay. कंटिन्यू So, कीजिए। yes, Katin sir has introduced something about mechanical maintenance, guys. Okay, you have seen that. So just I'll start with my PPT. Okay, just I'll show you in short the PPTs. Okay, so the various subject which is offered in our college, okay, is mechanical maintenance, computer science, electronics, and electrical maintenance. Okay, then this is student a subject which we are having the details. I'll explain it to you. Okay, mechanical maintenance we are having, in which 80 marks is for theory and 120 mark is for practical. Okay, in other subject you can see 100 computer science, 100 electronics and electrical maintenance, same 80 theory and 120 practical. So why I'm showing this practical and this theory? Okay, because in mechanical maintenance we have two papers, paper 1 and we have paper 2. Paper 1 is of 40 mark and paper 2 is of 40 mark. 40 mark का आपका syllabus होता है, means आप 80 mark का theory paper लिखते हो और आप 100 mark का आप जो 120 mark है वो आपका practical होता है, which is given in the college. So from the scoring point of view also this subject is important, but सिर्फ scoring के लिए नहीं आपको mechanical लेना है। जो बच्चे अपनी जो डिग्री है अगर वो उन्होंने आगे अपना जो कैरियर सोचा है वो अगर रिलेटेड फील्ड में सोचा, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो होता है वो ये है। ओवरऑल इंग्लिश 100, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ईवीएस एंड मैकेनिकल मेंटेनेंस 200, दैट इज 120 प्रैक्टिकल एंड 40 थियरी। मतलब जो ओवरऑल जो आपका परसेंटेज होता है उसमें आपका बायफोकल सब्जेक्ट 33% मार्क्स इंक्लूड करता है रिजल्ट में। ओके, दैट इज 33% मार्क्स ओवरऑल इज इंक्लूडेड इन योर board exam, 33%. Okay, so just I will 31%, just I will contribute to how it is included. Just मैं वो भी आपको दिखाऊंगा अभी। You can see here paper 1, paper 2, paper 1 theory 40 marks, practical 120 the 60, यहाँ पे भी same आपका 40 and 60, overall 120 marks, overall 120 marks for practical and 200 marks for overall mechanical maintenance paper. Now what things are included, just we will go in details now.
ओके, गुड न्यूज फॉर दी दिस नाटा स्टूडेंट, जो लोग नाटा की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग आर्किटेक्चर कॉलेज आर्किटेक्चर्स करना चाहते हैं। ओके, जो लोग आर्किटेक्चर करना चाहते हैं उनके लिए बेसिकली मैकेनिकल मेंटेनेंस में हम लोग जो ड्राइंग सिखाते हैं, जैसे कि आप क्लासेस में सीखते हैं पर्सपेक्टिव व्यू, 3D, ओके, 2D, उसके बाद आपका ऑर्थोग्राफिक, सीनरी प्रोजेक्शंस, तो ये सारी चीजें जो बेसिक होती है मैकेनिकल मेंटेनेंस में, बिकॉज इन इंजीनियरिंग यू गो टू एनी ऑफ द इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर यू हैविंग अ मशीन ड्राइंग, मैकेनिकल जो ड्राइंग होती है वो चाहे आप कोई भी बायफोकल लें, कंप्यूटर साइंस लें, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग लें, सिविल लें, ऑटोमोबाइल लें, तो सारे में आपको फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग होता है, जो इंजीनियरिंग ग्राफिक जो सब्जेक्ट होता है, या आप उसको बोल सकते हैं मैकेनिकल ड्राइंग बोल सकते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर हम 11th-12th में बेसिक से ही मैकेनिकल में सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग ऑल्सो। ओके स्टूडेंट, तो दोज हु आर टेकिंग आर्किटेक्चर उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उनके लिए एक ही सब्जेक्ट ये है जो है मैकेनिकल मेंटेनेंस। वी हैव मेनी स्टूडेंट, लास्ट ईयर वी गॉट आई थिंक 27 स्टूडेंट दोज हु आर प्लेस्ड इन आर्किटेक्चर कॉलेज, रचना कॉलेज है, फिर बोरीवली आर्किटेक्चर कॉलेज है, जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है, हमारे काफ़ी बच्चे उस कॉलेज में हैं जो मैकेनिकल मेंटेनेंस लेके, और जो भी आप मटेरियल वगैरह यूज़ करते हैं खास करके नाटा में जब आप बिल्डिंग बनाते हैं या प्रोस्पेक्टिव जो ड्राइंग्स बनाते हैं उसके अंदर कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस बायफोकल में, मतलब ये जो बायफोकल है ये आपके ही सिलेबस के रिलेटेड है। ओके, ज़्यादा लोगों को चीज़ें पता नहीं है, दैट इज़ वाई वी हैव गिवन दिस ओरिएंटेशन। उसके बाद फील्ड इन विच MM हेल्प मोस्ट, सबसे पहले नो डाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दो स्पेशली रोबोटिक्स आज की बहुत ज़्यादा है, रोबोटिक्स में ऑटोमेशन जो फील्ड है उसका बहुत ज़्यादा चलता है, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। टूल डिज़ाइन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो ऑलमोस्ट जो एवरग्रीन फील्ड बोली जाती है इंजीनियरिंग की, यहाँ पर आपका बेसिक जो होता है वो होता है मैकेनिकल। ओके स्टूडेंट, तो ये जो आप मैकेनिकल ले रहे हो सिर्फ आप मैकेनिकल लेके आपको डिग्री मैकेनिकल में करनी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब्जेक्ट लेने के बाद आपको एक टेक्निकल नॉलेज मिलता है, ये सब्जेक्ट टेक्निकल पे ज़्यादा जोर देता है ना कि थियोरेटिकल पार्ट पे। ये आपको टेक्निकल चीज़ें सिखाता है, वो टेक्निकल चीज़ें क्या सिखाता है वो मैं आगे आपको PPT में क्लियर बताऊंगा कि क्या सारी चीज़ें होती हैं, बट ये जो सारी फील्ड्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो, okay, yes, Tanay, you have asked something but I will explain you later on. Just I'll complete my PPT first, okay, because already maybe 5 to 10 minutes, so I will explain you the things but let me complete first. तो टूल डिजाइन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, सिविल एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये सारी फील्ड हैं जिसमें हमारे बच्चे आज अभी डिग्री अपनी कर रहे हैं। ओके, और इस चीज का जो MM मैकेनिकल सब्जेक्ट लिया हुआ है उसका यूज है, बिकॉज बेसिकली इन 11th and 12th यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मच मोर ऑन PCM, आप PCM पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हो, तो ये जो सब्जेक्ट है ये ज्यादातर आपका जो है टेक्निकल नॉलेज के लिए, इसमें बहुत थियरी नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल कंटेंट सिलेबस, बस आपको टेक्निकल नॉलेज देने के लिए सब्जेक्ट है, तो आप ज्यादातर ये सब्जेक्ट लेने के बाद आप PCM पे ज्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट। ओके, द मैकेनिकल, दैट इज द मेन रीजन। डिफेंस सर्विसेज, आजकल के जो ज्यादा लोग हैं, जो बहुत लोग NDA के लिए जाते हैं, या फिर आपका है आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सारी के लिए अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको 11-12 जो PCM सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ आप मैकेनिकल करने के बाद आप टेक्निकल एंट्री ले सकते हैं 10+2 लेवल पे। ओके, तो दिस सब्जेक्ट आल्सो हेल्प फॉर द डिफेंस सर्विसेज। डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन, आज का जो सबसे ज़्यादा चलने वाला जो फील्ड है प्रोडक्ट डिज़ाइन, इसके अंदर जो भी जैसे आप व्हीकल डिज़ाइनिंग हो गया, आप कोई भी कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं, सारी चीज़ों में मैकेनिकल का ही बेस जाता है। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट आई विल गो टू द नेक्स्ट। Benefits of mechanical maintenance, these are the certain more fields of mechanical, automotive, machine manufacturing, aviation industry, aviation related to our aeroplanes and jets, petroleum and gas, machine design, thermal, that is heat engineering, refrigeration, robotics, ये सारी चीज़ों में mechanical maintenance का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। तो those who have already decided कि नहीं मुझे यही डिग्री में जाना है, ओके, कि मुझे नहीं आगे चल के मुझे स्टील इंडस्ट्री में जाना है, मुझे ऑटोमोबाइल में जाना है, तो you have no other option than best subject is for mechanical maintenance। बस प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में उतना डिटेल में पता नहीं है, बट यू आर इन गुड चांस टू गेट दिस बिकॉज द कॉलेज इज ऑफरिंग यू दिस सब्जेक्ट। ओके, नाउ मैकेनिकल मेंटेनेंस सर्विसेज, द पर्पस, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहाँ पर इंडियन आर्मी नेवी के जो हथियार बनाए जाते हैं, जो वहाँ पे वेपन्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जाता है। सिविल इंजीनियरिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर बेसिक इज मैकेनिकल। फिर आपका आता है एविएशन इंडस्ट्री, रोबोटिक्स इंडस्ट्री, रोबोटिक्स आज के डेट में जिसको हम ऑटोमेशन बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फील्ड है। इसके अंदर मास्टर्स डिग्री जो होती है वो आप मैकेनिकल करने के बाद डिग्री आप मास्टर्स ऑटोमेशन में भी कर सकते हैं। नाउ
हमारा जो मैंने आपको बताया कि आप MM लोगे तो आपको इसको स्कोरिंग होता है। कैसे स्कोरिंग होता है, जस्ट मैंने कुछ लास्ट ईयर के बच्चों का रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है। अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे, मैकेनिकल मेंटेनेंस, दिस गर्ल स्कोर मोदी बंसरी नीलेश 199 out of 200, 199, could you imagine that, 565 out of 600. Okay, so this is what the power of taking the subject scoring. बाकी आप अगर PCM पे ध्यान देंगे, we scored good in PCM, तो overall subject will cross your 90-95% marks. ओके यहाँ पे एक ऐसे रिजल्ट नहीं है कि मैंने आपको यहाँ पे जितनी बच्चे मोस्टली दे गेट 190 प्लस, ये आपका एक सब्जेक्ट अगेन मैकेनिकल मेंटेनेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। देसाई प्रिया बंकिम 199 आउट ऑफ 200। ओके ये भी सेम, तो आप देखिए 31% मार्क्स यहीं पर कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली वी नीड। हमें सब्जेक्ट लेने के बाद, बिकॉज वट एवर यू विल गोइंग टू डू फॉर CET एंड JEE मेन, CET और JEE मेन में PCM will play an important role, and other the bifocal subject which you are taking, it should be easy to prepare. आपको PCM से ज्यादा concentrate अगर bifocal subject पे करना पड़ रहा है, then what is the use of taking it? It is much more for 12th, you just concentrate on PCM and take a subject like that which you can score easily. जो आपने नाटा लिया है, तो अगर आप कोई और सब्जेक्ट ले रहे तो आप ऐसा सब्जेक्ट लो कि जो नाटा आप कर रहे हो उसमें भी यूज करें और आपका रेगुलर सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो उसमें भी यूज करें। तो इस तरीके से स्टूडेंट वी हैव टू डिसाइड द सब्जेक्ट, नॉट कि हमें कुछ हमने किसी और फ्रेंड ने कुछ लिया तो हमें भी वही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। डिसाइड विच इज द मोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ योर सब्जेक्ट in your field which you have taken, which you are going to decide in the future. That is what this is important. Okay, I will go to the next. The name of the student is Nanavati Kavya Premal. Okay, you can just see the score which she had scored in mechanical maintenance, that is 200 out of 200 marks. If 200 mark out of 200 इन्होंने स्कोर किया तो बचे हुए जो 400 मार्क है वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश में आपको स्कोर करना है। मतलब आप पूरे 2 साल सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो है PCM and English. Mechanical maintenance, only the practical part is important, theory is very less. So आपको जो 2 साल है वो आप अपने जो प्योर सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप अपना JEE और CET देना चाहते हैं उसके ऊपर आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो बच्चों ने स्कोर किया, और ऐसे एक ने, ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने ये मार्क्स स्कोर किया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने PPT में कुछ इंक्लूड किया हुआ है। तो दिस इज हाउ द स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग इन दिस सब्जेक्ट गाइस। ओके, लेट्स मूव टू द फर्दर। These just I'm showing you some of the students in the different college in Maharashtra, in other parts of the country. IUME Ontario pursuing bachelor degree in interior design. Okay, interior designing में भी जो बच्चे हैं, that was after doing the interior designing, this is what she have written for the TB Bhatia College and the mechanical maintenance department. Okay, so it is very beneficial, and what you are taking the subject student, that plays a very important role. Take that subject only, which will help in your future and your subject. Okay, so she is IUME Ontario. Chirag Pandya, okay, SRM University, you know, it's very famous university. He is doing aerospace engineering. Okay, he has written some matches for you all guys. Okay, it was very nice, full technical experience in mechanical workshop. ऐसे बहुत सारे बच्चों का हमको फीडबैक आते रहता है जो मैं अपने आने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ में शेयर करता हूँ। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग बेसिक आप यहाँ पे देख रहे हैं। He has also done the mechanical maintenance, okay, and he has done really well in the practical point, from the practical point of view. So these are the few students. Darshan Dedia, School of Environment and Architecture, Borivali West. Okay, he is also a mechanical student. हिनल सोलंकी, रचना सांसद अकेडमी, रचना कॉलेज, मैंने आपको अभी नाम बताया था। वैष्णवी परमार, JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। ये सब मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो मैकेनिकल मेंटेनेंस लेके, जिन्होंने आर्किटेक्चर में जो अपनी डिग्री हो परस्यू कर रहे हैं। तो दिस आर दी सम स्टूडेंट्स। नाउ मैकेनिकल मेंटेनेंस सब्जेक्ट में बेसिकली होता क्या है, क्या पढ़ाते हैं हम 2 साल? हम पढ़ाते हैं कारपेंट्री के रिलेटेड। स्टूडेंट जरा जस्ट पे अटेंशन, व्हाट इज देयर इन योर सब्जेक्ट। कारपेंट्री, स्मिथी रिलेटेड टू हीट, फॉर्जिंग किस तरीके से मेटल को शेप देते हैं, फिटिंग किस तरीके से अलग अलग मेटल पार्ट्स को जोड़ा जाता है, किस तरीके से वेल्डिंग की जाती है। मतलब एक ओवरऑल जो इंजीनियरिंग का आपका जो स्कोप है, इंजीनियरिंग में आने वाली सारी चीज़ें हम आपको उस चीज़ में कवर करते हैं। हीट ट्रीटमेंट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैंने आपको बताया ये ड्राइंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। आपने 10th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर किया है, जैसे कि आपने बेसिक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन चैप्टर है जिसके अंदर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, सर्कमस्टेंशियल आपने ड्रॉ किया हुआ है, वहीं से ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाता है। ओके, द बेसिक ऑफ ड्राइंग। ओके, ये ड्राइंग कोई वॉल पेंटिंग या ट्री ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रॉपर टेक्निकल ड्राइंग होता है जिसके अंदर हम अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाते हैं।
और इंजीनियरिंग ड्राइंग हम आगे पार्ट में जाएंगे तो है मशीन ड्राइंग। और हम लोग सेकंड पार्ट पे जब आते हैं, जो 12th में हम बच्चों को सिखाते हैं वो है लेथ मशीन। यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। और गाइस इट इज वेरी 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 एंड वेरी इजी। जस्ट मैं आपको इसका वीडियो भी दिखाऊंगा किस तरीके से बच्चे ये परफॉर्म करते हैं। Okay. शायद अभी आपको इतना डिटेल में नहीं समझे, डोंट टेक टेंशन। ओके, जब कभी भी जब व्हेनेवर वी आर स्टार्टिंग विद द लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग्स इन मच मोर डिटेल्स। ओके, मिलिंग मशीन, पंप्स, तो ये आपका जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये आपका 11th का सिलेबस है और ये आपका 12th का सिलेबस है। ये सेम चीज जो मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यू विल स्टडी इन द फर्स्ट ईयर एंड इन द सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, ये सेम चीज। और जो लोग मैकेनिकल सिविल लेंगे वो पूरे 6 साल इस सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई करेंगे। जो आपका 4 साल है वो पूरे 4 साल इस सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई करेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें 11th 12th में okay. Now how TP Bhatia bifocal helps student to get the technical subject. Okay, much more age means you're getting more knowledge. So first of all 1-to-1 attention, ये सिर्फ हम बोल नहीं रहे हैं, ये हम करते भी हैं लैब में। Okay, college provides separate tools and equipments. We have a separate box for each and everything. I will show you in the video also. Highlight highly experienced industrial trained faculties. Okay, dear, I am also teaching for mechanical. I done my masters in engineering. Okay, from Sardar Patel Engineering College. So we know how to train the students and how this subject is going to be helpful in the future. Industrial visit is सबसे important part है जो सिर्फ और सिर्फ आपको टीपी भाटिया कॉलेज में मिलेगा। हम बच्चों को हर साल इंडस्ट्रियल विजिट कराते हैं। ओके, बस बिकॉज ऑफ दिस कोविड लास्ट इट वाज कैंसिल्ड एंड यू नो द रीजन। बट जो भी हमारा रेगुलर बैच चलता है इंडस्ट्रियल विजिट, हम बच्चों को लेके जाते हैं माझगांव डॉक जहाँ पे शिप बिल्डिंग किया जाता है, एजुकेशनल टूर लेके जाते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है, उसके बाद में रेलवे वर्कशॉप है, वहाँ पर लेके जाते हैं। और प्रैक्टिकल्स तो जो MM के होते हैं वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बिकॉज हम उसको प्रैक्टिकली जब हम करते हैं, कोई चीज़ जब हम प्रैक्टिकली करते हैं, जब मैं मशीन चालू करके कोई जॉब खुद बनाता हूँ तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। ओके, तो दिस आर द थिंग्स। नाउ जस्ट आई विल एक्सप्लेन द अदर थिंग्स आल्सो फ्रॉम द सब्जेक्ट। ये MM डिपार्टमेंट है। ओके, यहाँ पर हम बच्चों को प्रैक्टिकल करा रहे हैं। यहाँ पे जो आप देखोगे, जो मैंने यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एक ऑटोमोबाइल का पार्ट है, ऑटोमोबाइल सेंट्रो इंजन जो आप देख रहे हो। ओके, यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। ये यहाँ पर हम सारे जो आप पार्ट्स देख रहे हो सेंट्रो इंजन के पार्ट्स को ओपन करते हैं। बच्चे उसको उस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे इंजन को मेंटेन करना है, कैसे काम करना है। एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। ये फ्यूचर में उनके लिए बेनिफिशियल है, ऑटोमोबाइल के लिए। ऐसे करके ऑटोमोबाइल का थोड़ा पार्ट है, थोड़ा पार्ट आपका रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड है, थोड़ा पार्ट मशीन से रिलेटेड है। अब आप सेकेंड यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बच्चे मशीन चला रहे हैं। मैंने आपको बताया ये सब आपको सेपरेट टूल किट आपको दिया जाता है। आप पूरा साल खुद यूज करते हैं, उसको सेफली रखते हैं ताकि हर बच्चे खुद से परफॉर्म कर पाए। और इंडस्ट्री में हमें कैसे काम करना है या कैसे काम करवाना है ये हमको समझना बहुत जरूरी है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट में मिल सकता है जो है मैकेनिकल मेंटेनेंस स्टूडेंट। ओके, जो लोग को डिजाइनिंग में बहुत शौक है, असेंबली डिसमेंटलिंग घर पे प्रोजेक्ट्स बैठ के बनाते हैं, वहां पर ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ओके, तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे फिटिंग का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो जस्ट I'll move to the next. ये हमारा कुछ जहाँ पर हम बच्चों को लेके जाते हैं दिखाने के लिए, माझगांव शिप बिल्डर्स। अगर आपने ये नाम नहीं सुना होगा तो अगर आपने ABCD मूवी देखी होगी, एनीबॉडी कैन डांस, उसके अंदर जहाँ पे लोग डांसिंग प्रैक्टिस करते हैं ये वो जगह है। या गाजी अटैक मूवी आई थी जहाँ पर पूरी फिल्म शूट की गई थी, ये वो जगह है जहाँ पर बच्चे जाते हैं और मिलते हैं। जैसे किसी को इंडियन नेवी में जाना है तो वहाँ के जब लोगों से मिलते हैं दे कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। ये BST वर्कशॉप है जहाँ पर जो भी अपनी BST की बसें है जिनको मेंटेनेंस किया जाता है, दादर, इसको TTC बोलते हैं, दादर टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ पर बच्चों को हम लेके जाते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि आपका स्टडी के साथ में ये सारी एक्टिविटीज बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल रेलवे का वर्कशॉप माटुंगा, यहाँ पर हम ऐसे हम काफ़ी जगह बच्चों को हर साल में 2 या 3 जगह पर विजिट करवाते हैं ताकि उनको और भी सारी चीज़ें सीखने को सब्जेक्ट के साथ में मिले। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ फोटोज़ जो मैं लास्ट ईयर हम जो इंडस्ट्रियल विजिट हमने किया था उसके बच्चे यहाँ पर आप देखेंगे पूरे सेफ्टी के साथ। ओके, ओवरऑल सेफ्टी के साथ यहाँ पर गए हैं।
यहाँ पर मैं बच्चों को लेके गया कैसे रेलवे के जो बड़े बड़े जो वैगन से किस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं, उसमें कैसे इंजीनियर्स काम करते हैं, कैसे उसको मेंटेन किया जाता है। आपने जो भी फ्लूइड जो फिजिक्स के बारे में पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, या आपने जो भी लॉज कैसे उसको टर्म्स में एक्चुअल टर्म्स में उसको लाया जाता है, ये सारी चीज़ें बच्चे वहाँ पे जाके खुद सीखते हैं। तो दिस इज समथिंग डिफरेंट, ओके, दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द स्टडी पर्पस। दिस इज समथिंग व्हाट यू वांट टू बिकम इन द फ्यूचर एंड यू आर मीटिंग दैट काइंड ऑफ पर्सन। आप उससे अपने फील्ड के लोगों से जब मिलते हो तो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। एंड दिस आर द थिंग यू शुड गेट at the, because finally whatever you are learning, it is only done when you are doing the practical. कैरियर रिपेज वर्कशॉप लोअर परेल। ये हम जो महिंद्रा की फैक्ट्री में गए थे, ओके, वी हैव विजिटेड द महिंद्रा फैक्ट्री, महिंद्रा वहाँ के जो वेंडर हैं वैसे ही में उनके पास। तो ये पूरा बच्चों का ग्रुप है हमारा। ये सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट के सिलेबस में जो कंटेंट है, हम उसी कंटेंट के रिलेटेड ही कंपनी सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर हम आपको हर साल लेके जाते हैं। ओके, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग फॉर 2 years complete industrial training and complete the technical things, and your work is to concentrate on much more on PCM and our work is to give you to the technical knowledge. Okay, that is the point. ये सारा हम सर्टिफिकेट्स वगैरह बच्चों को देते हैं जहाँ पर हम आईवी जाते हैं। आईवी का मतलब है इंडस्ट्रियल विजिट, ठीक है। यहाँ पे सारे बच्चों को केमिकल इंडस्ट्रियल पर्सनल जो होते हैं वो हम बच्चों को दिखाते हैं। ये सारे ट्रैक्टर के पार्ट्स है जो आपके सामने दिख रहे हैं, जो ट्रैक्टर आती है महिंद्रा ये उसके पार्ट्स बनाते हैं और सेम डे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंजीनियरिंग में भी आप जब जाते हो तो जो आपका फाइनल ईयर है उसके लिए आपको इंटर्नशिप के लिए कंपलसरी है 45 डेज़ का इंटर्नशिप। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको हम वो पहले से ही 11th-12th में बता देते हैं कि इंटर्नशिप होता क्या है। ओके, ये हम जो बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर अगर आप देखे रहेंगे जोगेश्वरी हब मॉल के पास जो है वहाँ पर भी जब भी हमारा कोई भी लगता है एग्जीबिशन जो इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो, मेरे बच्चों के रिलेटेड हो, तो वहाँ पर हम बच्चों को लेके जाते हैं ताकि जो अलग अलग वर्ल्ड से जो जिस यहाँ पर 28 अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों ने एग्जिबिट किया था जहाँ पर हम गए थे लास्ट ईयर, तो वहाँ पर भी बच्चों को एक्सपोजर मिलता है इंटरनेशनल मार्केट का। तो हमारा पूरा कोशिश ये रहता है कि जब भी बच्चे आ रहे हैं उनको ओवरऑल इंडस्ट्री की आइडिया, क्योंकि फाइनली आफ्टर पासिंग आउट योर डिग्री यू आर गोइंग टू वर्क इन सम ऑफ द कंपनी एंड दिस इज हाउ वी हैव टू स्टार्ट। ओके, Now this is some activities which we perform in TB भाटिया कॉलेज। सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं हम, उसके साथ में हम कुछ जो है कुछ एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं। ये सारे फर्स्ट प्राइजेस लास्ट ईयर हमने जो 28 ओवरऑल मुंबई में प्राइजेस जीता था हमने टेक्निकल प्रेजेंटेशन में। हमारे बच्चे कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिनको इंटरेस्ट होता है वो बच्चे अपना ग्रुप बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसको हम जो जोनल लेवल है, आर्ड वाल लेवल है, उसके बाद में जो स्टेट लेवल तक हम जाते हैं इस चीज़ को लेके। तो सारी तरीके से आपको सपोर्ट मिलता है अपने अंदर जो भी एक्टिविटीज़ है, आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको बाहर लाने के लिए। तो दिस इज़ हाउ TB भाटिया MM डिपार्टमेंट एंड द TB भाटिया कॉलेज वर्क्स टुगेदर। ये सारे हमारे बच्चे जो स्टेट लेवल पे गए थे, उसके बाद ये बच्चे हमारे जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उसको सामने जो डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप पब्लिक में जाके बातें करते हो तो एक तरीके का अलग एक्सपोजर है। दिस इज इट ट्रेन्स हाउ यू टॉक इन द पब्लिक। ओके, ये सारी चीज़ें बुक से रिलेटेड नहीं है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ है जो MM डिपार्टमेंट में हम हर साल बच्चों को करवाते हैं। ये सारा जो स्टेट लेवल जोनल लेवल है, ये कुछ बाईसाइकिल बच्चों ने फार्मर्स के लिए डिज़ाइन की थी। तो ये आप कब सीखते हो? जब आप टेक्निकल चीज़ें सीख जाते हो तो आप खुद ना खुद ड्रिलिंग करना चालू कर देते हो, वेल्डिंग आपको आने लगती है, तो ये तब आप इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हो। ओके, तो ये एक ओवरऑल मैंने ये दिखाया कि किस तरीके से MM सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आप यू हैव टू डिसाइड, जिन्होंने लिया है नो डाउट, एंड जिन्होंने नहीं लिया थिंक ओवर इट एंड गो फॉर इट। नाउ व्हाट आई विल शेयर विथ यू ऑल इज द MM डिपार्टमेंट। MM डिपार्टमेंट में किस तरीके से हम आपको ओवरऑल चीज़ें करवाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। जस्ट वन सेकंड गाइस। ओके स्टूडेंट, जस्ट मैं अभी आपको अपना MM लैब दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर हम बच्चों के सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं। ये मैं आपको जो दिखाऊंगा वो 2 लैब हैं, ऐसे हमारे पास 2 लैब और है जहाँ पर हम वेल्डिंग वगैरह करवाते हैं। बट रिसेंटली वी हैव शूटेड फॉर दिस 2 लैब। बच्चे वहाँ पे अंदर काम कर रहे हैं तो आप देख सकते हो।
Okay. Maintenance is a bifocal subject provided in TP Bhatia Junior College of Science for the students of science. ये आप जो देख रहे हो बच्चे सारे लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं यहाँ पर. ओके ये सारी जो 11th में हम थियरी सिखाने का प्रैक्टिकल, तो इट इज़ वेरी इजी. व्हाट दे आर डूइंग इज मेटल कटिंग ऑपरेशंस. इस तरीके से 1 to 1 जो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर जितनी मशीन है उतने ही बच्चे काम करेंगे एट अ टाइम. तो वी हैव 6 लेथ मशीन, वी हैव ऑल द मशीन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर योर प्री रिक्विजिट लेवल. वी हैव ऑल द मशीन्स. ओके यहाँ पर आप देखोगे हर मशीन पे कोडिंग किया गया है, हर मशीन पे लेबलिंग एक तरीके से है. सारे बच्चे अपने अपने जो जॉब हैं उस पर लगे हुए हैं. ये ऑल आप देख रहे हो जो लड़कियां हैं ये स्पेशली नाटा की हैं, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हैं. तो आप पूरी तरीके से स्पेशली आप देखोगे लड़कियां यहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं. तो दिस आर द थिंग्स विच जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हो तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आती हैं. तो इंडस्ट्री में जब वर्कर आपके लिए काम करता है तो आपको समझ में आएगा वो सही कर रहा है गलत कर रहा है कब, जब आप उस चीज़ को खुद किए रहोगे तब. यहाँ पर मैं आपको जो अभी दिखा रहा हूँ हमारा सेकंड लैब, ये टूल्स वगैरह जो हमने डिस्प्ले किए हैं कॉलेज में. आप जब भी एडमिशन लेने हैं कभी जब कॉलेज आ रहे हैं तो आप वहाँ पे मैकेनिकल लैब देख सकते हैं जाके. यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डिस्प्ले की हुई है. कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर पे ही है ये लैब. ओके तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग फिटिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं एक्सेट्रा. यहाँ पर आप देखोगे जो बच्चे हैं ये फिटिंग का जॉब कर रहे हैं. फिटिंग क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पर आप जरा देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपको दिख रहा है तो. ओके ये सारी जो जॉब हैं ये सारे टूल्स हैं जिसको हम यूज़ करके अलग अलग जॉब बनाते हैं. यहाँ पर आप देखोगे जॉब नंबर 1 2 3 4 ऐसे मेटल के आपको कट कर करके अलग अलग शेप बनाने होते हैं और ये हर शेप बनाने के आपको मार्क्स मिलते हैं. ये जो आप एक जॉब देखते हो वो 10 मार्क्स का होता है. तो आप बनाते हो फिर हम उसको चेक करते हैं और ये लेकिन बनाने के पहले हम आपको पूरा सिखाते हैं कि आपको बनाना कैसे है. तो ये मैकेनिकल मेंटेनेंस का सेकंड लैब है जिसको फिटिंग लैब बोलते हैं. यहाँ पर बच्चे जॉब को घसते हैं मेटल से. ओके जो आप फाइल देख रहे हो इससे घसते हैं और उसको शेप देते हैं. ओके स्टूडेंट जस्ट कंटिन्यू विद दैट. Okay, you can see here fitting shop. ये सारे टूल्स है जो आपको इंडिविजुअली हर एक को दिया जाता है. इसमें आपको कोई परचेस करने की जरूरत नहीं. कॉलेज में हर एक बच्चे के लिए इंडिविजुअल सेट है हमारे पास. ओके ये वीडियो आशीष सर ने ही शूट किया था इसको कॉलेज में. ओके जैसे सिंपल कार्बोरेटर, ये आपका कार्बोरेटर का स्केच मैंने बनाया हुआ है बोर्ड पे. ये आईसी इंजन का पार्ट ऑटोमोबाइल के जो 2 व्हीलर्स होते हैं उसके अंदर जो कार्बोरेटर होता है उसका फंक्शन है. तो इस तरीके से भी हम बच्चों को बोर्ड पे बना के समझाते हैं कि बेसिकली आपका पार्ट्स कैसे. तो ये बहुत ही एंजॉयबल सब्जेक्ट है. ओके इसमें ज़्यादा कुछ हैक्टिक या रॉकेट साइंस नहीं है. यहाँ पर ये बच्चे देखो किस तरीके से प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो आपको कट कर रहे हैं, घिस रहे हैं, शेप दे रहे हैं. तो इट्स काइंड ऑफ एन एंटरटेनमेंट. ओके एक तरीके से आपको मज़ा आती है, फिजिकल वर्क होता है. ओके ये सारे टूल किट्स है जहाँ पर आपको आप देखोगे डायग्राम्स हम बोर्ड पे बनाते हैं उसके रिलेटेड हम आपको बताते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक जॉब दे दिया तो आपको यहाँ पे जॉब को कट करके मुझे दिखाना है कि इसको आप कैसे कट करोगे, कैसे यहाँ पर इसको आप रेडियस बनाओगे. ठीक है इस तरीके के सारे आपको काम करते हैं. बट इसके लिए हम आपको पहले प्रॉपरली तरीके से ट्रेन करते हैं. ओके ये जिससे कट कर रही है उसका हैक्सॉ बोलते हैं. ये प्रॉपर तरीके से आपको कट करना है. ओके ये फाइल यहाँ पे रखा हुआ है जिससे आपको जॉब को घिसना है और शेप देना है. सेम फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ऑल्सो इन द डिग्री कॉलेज ऑल्सो यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग, सेम जॉब. वहाँ पर वो लोग 2 जॉब बनाते हैं, हम पूरे साल में 6 जॉब बनाते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड है. तो आपको ये सारे टूल्स इक्विपमेंट्स आपके साथ सामने होते हैं जो आपको यूज़ करना है, आपको लेना है, फिर आपको ये वापस जमा करना है जो वहाँ पे लैब असिस्टेंट होगा उसके पास. Okay, so this is a mechanical lab. Okay, we have shown you the 2 labs. इस तरीके से मैंने आपको 2 लैब मैकेनिकल के दिखाया जहाँ पर बच्चे सारे प्रैक्टिकल करते हैं. तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप एक जगह बैठ गए और कुछ कर रहे हैं. ये एक तरीके से फिजिकल एक्टिविटी है क्योंकि फाइनली जब आप ऑटोमोबाइल सिविल आर्किटेक्चर लेते हो तो आपको एक जगह बैठ के काम नहीं करना है, आपको साइट पे जाना है, आपको मशीन को देखना है. तो ये सारी चीज़ें हम मैकेनिकल मेंटेनेंस में आपको कराते हैं. ठीक है स्टूडेंट, जस्ट वन मोर वीडियो आई नीड टू शेयर विथ यू ऑल. Okay, and that is
हमारा जो इंडस्ट्रियल विजिट था, जस्ट वन सेक, ये हम जो इंडस्ट्रियल विजिट गए थे वहाँ के कुछ जो रेलवे वर्कशॉप लोअर परेल हम गए थे, वहाँ के कुछ इमेजेस। बहुत ही बड़ा वर्कशॉप है ये। ओके, ये वहाँ के जो हेड हैं, जो रेलवे वर्कशॉप के जो एक तरीके से आप डायरेक्टर बोल सकते हैं, ये स्टूडेंट्स को वहाँ पे समझा रहे थे कि किस तरीके से आप रेलवे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप आ सकते हैं, आपको किस लेवल के लिए स्टडी करनी पड़ेगी, कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे। तो बच्चे जब 1 to 1 उस आदमी से मिलते हैं जहाँ का पूरा रिक्रूटमेंट उनके हाथ में है, तो उनको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, सारे मैकेनिकल के बच्चे हैं ये। पूरा रेलवे मेंटेनेंस किस तरीके से उनका सीट बनाया जाता है, उनके जो सारे इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, कैसे मेंटेन किया जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बच्चों ने, ये 2 दिन का वर्कशॉप था। ये पूरा वैगन के अंदर, मतलब पहले जब गाड़ी खराब होती है, जो डिब्बे, उसको फिर कैसे रिपेयर करते हैं, सारी चीज़ें बच्चों ने खुद से। ये बड़ा ओवरहेड क्रेन है जो पूरी बोगी को उठा के लेके पूरे वर्कशॉप में घुमाता है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको सिर्फ इंडस्ट्री में दिखेंगे, कहीं बुक में या कहीं पर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो दिस इज़ वी हैव कंक्लूडेड दिस। ओके, तो इस तरीके से ये विजिट जो है हमने इसको किया था, हर साल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैकेनिकल मेंटेनेंस में मिलती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव टू से, कि आपको ये सब्जेक्ट है, उसके ये बेनिफिशरीज हैं, उसके ये मार्क्स होते हैं, इस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो भी इक्विपमेंट्स टूल्स है आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑल थिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज इटसेल्फ। हमारे पास और कोई मशीनरी लेना है, कोई आपको कोई डिवाइस खरीदना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें हैं वो आपको कॉलेज से मिलेंगी। Got everyone? Anybody is having any doubt, you can just ask me directly, dear. Yes, dear. Yes, Jay Patel. You can ask the question, dear. Jay Patel. So can we tell that mechanical maintenance is best for merchant navy? Yes, dear. We have last year we have 7 students who joined merchant navy after the mechanical maintenance, dear. This is the only subject. Yes, anybody else? Indian Navy defense के लिए subject mechanical maintenance है, dear. Because in merchant navy we have ship and all. तो वहाँ पे जो मेंटेनेंस जो कोर्स होता है, जो लोग मेंटेनेंस के लिए जाते हैं, मेंटेनेंस के लिए जो कैप्टन लेवल की जो पोस्ट जाते हैं, टेक्निकल होते हैं वो। ओके जय। सर। यस यश विश्वकर्मा बोलो। सर अभी प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे? अभी डियर जो कोविड की वजह से हम प्रैक्टिकल ऑनलाइन ले रहे हैं, क्योंकि 11th में तो वैसे भी आपको तो जो हम प्रैक्टिकल जो है ड्राइंग से रिलेटेड कराते हैं, मशीनरी का पार्ट 12 से स्टार्ट होता है। तो होप सो दिस बिकॉज 2 to 3 में विल कंटिन्यू देन, और जैसे ही ऑफलाइन स्टार्ट होगा विल गेट टू द रूटीन वर्क। ओके यश। यस यस नुपुर देसाई। यस Sir, will mechanical maintenance be conducted on daily basis or once in a week or something? No, dear. It's basically it is in a 3 days in a week. Okay, from Monday, Tuesday, and Wednesday, and in one day you have a practical for 2.5 hours. Week में 3 दिन होता है mechanical maintenance. Yes, dear. Okay, sir. Thank you. Yeah. Harsh Yadav. Yes, dear. Sir, anything about when the college will start? डियर इट्स अ क्वेश्चन, ये सबको यही क्वेश्चन, मुझे भी यही क्वेश्चन जानना है कि कॉलेज कब से स्टार्ट होगा, लेकिन जब भी स्टार्ट होगा सबको इन्फॉर्म किया जाएगा। आशीष सर विल इन्फॉर्म एवरीवन। ओके नेक्स्ट। ओके या एनीबॉडी एल्स? यस जय पटेल यू कैन आस्क। तो सर हम अभी कॉलेज में मैंने कंप्यूटर साइंस लिया, तो मेरे को मैकेनिकल मेंटेनेंस लेना, तो चेंज कर सकते हैं? Yes, directly. Ashish sir is here only. He can change. Just contact anything, any problem. Just contact Ashish sir. He will resolve all the questions here. Okay. Sir. Yes. Yes. सर CS के भी फील्ड विजिट होते हैं? Sorry, आपका नेटवर्क इशू है, बोलो वापस। यश सर CS के भी फील्ड विजिट होते हैं? है सच CS का फील्ड विजिट इतना नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है, और हमारा जो भी फील्ड विजिट के लिए MNCs है तो कुछ ज़्यादा ही हाई फाई होती है। जैसे आप L&T की बात कर लो या विप्रो की बात कर लो, तो उनसे अपॉइंटमेंट लेना और ये सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है। प्लस
ऑन टॉप इसमें ये प्रॉब्लम रहता है कि उनके जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं काफी उनको मतलब आप बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ऐसा होता है। सारे जो काम होते हैं उनके तो ज्यादा जल्दी परमिशंस नहीं मिलते, मगर कभी हुआ तो नहीं है। हम ट्राई करेंगे कि किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को बुला करके आपको एटलीस्ट इंडस्ट्री का ओवरव्यू बता सकते हैं। जैसे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ओरिएंटेशन किया था, उसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के हम ओरिएंटेशन अरेंज कर सकते हैं, ताकि आपका एक इंडस्ट्री का एक्सपोजर उनके मुंह से आप लोग सुन सको, उनसे समझ सको। ठीक है, Okay, sir. Thank you, sir. Okay, anybody having any doubt? Other people? Yes, Maitri, Rajesh. सर टेक्स्ट बुक्स और नोट्स कब मिलेंगे, मतलब मिलेंगे कि नहीं कॉलेज से? मिलेंगे डियर, सब कुछ मिलेंगे आपको। वंस द कॉलेज स्टार्टेड, आपका जब स्टार्ट होगा तो आपको सारी चीजें मिलेंगी, कुछ भी आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। वी विल इन्फॉर्म एवरीथिंग। सर हमारे रेगुलर लेक्चर्स कब से स्टार्ट होंगे? डियर वो आशीष सर आपको इन्फॉर्म करेंगे। अभी जब रेगुलर से तो आपको मैसेज आ जाएगा कॉलेज से। डियर डोंट टेक टेंशन अबाउट इट। अभी फिलहाल सारे सब्जेक्ट के ओरिएंटेशंस कंप्लीट होंगे। जैसे आज मैकेनिकल मेंटेनेंस का है, फिर और भी सारे सब्जेक्ट्स का ओरिएंटेशन आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल जाए कि सब्जेक्ट्स में आप पढ़ने क्या वाले हो 2 साल तक। एक बार वो आइडिया मिलने के बाद फिर हम आपका रेगुलर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आपको जो भी शेड्यूल है वो टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा। धीरे धीरे आपका व्हाट्सएप का भी ग्रुप हम फॉर्म करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको सब कुछ होगा स्लोली एंड ग्रेजुअली। ठीक है, आपको सारी सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। डोंट टेक टेंशन। ओके, और जो भी सब्जेक्ट आपको लेना है, जस्ट सी ऑल द थिंग्स। ओके, जितनी भी रोटेशन होती है आप बैठो, देखो जो आपके लिए सब्जेक्ट लगता है, देन यू जॉइन फॉर दैट। किसी को सीएस से मैकेनिकल मेंटेनेंस में शिफ्ट होना था, प्लीज आपके पास मेरा नंबर होगा, ठीक है, या फिर वेबसाइट पर भी है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए कि आपका नाम कंप्लीट ये है और आपको कंप्यूटर साइंस से शिफ्ट होकर के मैकेनिकल मेंटेनेंस लेना है। हम नेसेसरी चेंजेस कर देंगे। ओके, यस दीपक शर्मा, बी फर्स्ट डियर। सर टेस्ट और नोट सब ये भाटिया से मिलेगा ना? डियर जो भी रहेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। नोट्स टीचर देते हैं आपको, और टेक्स्ट बुक वगैरह जो भी कुछ है वो टेक्स्ट बुक आपको लेना पड़ेगा। हम आपको बताएंगे, जो भी रिस्पेक्टेड टीचर्स होगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करेगा जब आपके लेक्चर्स चालू होंगे तब। तो सर ये इंट्रो चालू है अभी आपको इंट्रोडक्शन चल रही है हर सब्जेक्ट का। जो भी बाइफोकल सब्जेक्ट है वो बाइफोकल सब्जेक्ट में क्या होता है ये सब आपको बताया जा रहा है, क्योंकि आपको इस चीज का नॉलेज नहीं है। आप सब देख लीजिए, देन यू डिसाइड व्हाट यू हैव टू गो फॉर। ओके डियर? सर यस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और मैकेनिकल मेंटेनेंस दोनों भी आर्किटेक्चर के लिए होता है, लेकिन दोनों में से बेटर कौन सा है? डियर मैकेनिकल मेंटेनेंस ऑब्वियसली, बिकॉज यू नो दैट कि जो हमारे पास जो 90% जो भी क्राउड है वो आर्किटेक्चर का ही है हमारे पास, बिकॉज ये सब ड्राइंग के रिलेटेड है, ड्राइंग मैकेनिकल के लिए ये है। ओके, यस हर्ष। Sir, your voice is not audible clearly. May you take the mic? हाँ बोलो ना। नहीं सर, ये बोलना था कि ओके ओके ओके, नहीं ठीक है, थैंक यू डियर। ये दिवेश राय। दिवेश सर हमारी पीसीएम की क्लास कब स्टार्ट होगी? दिवेश अभी अगर आपने ध्यान दिया अगर तो थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। बहुत ही सिंपल सा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट, all the orientations will be happening for electrical maintenance, mechanical maintenance, physics, chemistry, bio. Each subject you will be having an orientation for each subject. After that, the schedule for the FYGC lectures will be put in the group, and we will also put the links for you to join the WhatsApp group. And after that, the lecture will start. So you can assume that the whole procedure will be completed within a week or 2 weeks. Okay. Thank you. Any other people having any doubt? Yes, Ashish sir. सर आई गेस अभी क्वेश्चंस नहीं है, तो लास्ट में बस खाली यही बोल के वाइंड अप करेंगे कि इफ एनीवन वांट्स टू चेंज एनी सब्जेक्ट, प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट अस. वी विल डू द नेसेसरी नीडफुल. एंड besides that, if you have any other questions, you can ask to us and we will help you with that. If
no one is having questions, then we can end the session. Okay, sir. Okay, as sir is informed. Those who have any doubt, just contact to the college. Okay, just you can contact us. Okay. Thank you everyone for joining this session.